It's a real pleasure to have him here with us in the dressing room. We've got Nikhil Chopra. Nikhil, good afternoon. Good afternoon, sir. Did you sleep well? Absolutely. Fresh as a daisy, in the pink of health. I like that. I love that. That's very nice. Right? Next up, dosto, हमारे legend, one of those outstanding fast bowlers, toe crushing, golf swinging, no lakha off the dressing room, Waqar Younis. Waqar, good afternoon. Assalamu Good alaikum and afternoon, welcome. sir. Good afternoon. How are you? I am okay. Okay. That's more important. Bas, that's more important. Yes, that is. You look good today, by the way. Good man, good man. Ladies and gentlemen, the cricket royalty himself, the legend, the Sultan of Swing, the swinging Sultan, in a league of his own. कलाकार भी हैं, गुलकार भी हैं, फनकार भी हैं, बैंकर भी हैं, और मैंने आपको बताया कि बहुत सारी और भी चीजें हैं. Ladies and gentlemen, we've got none other than Wasim Akram. Good afternoon, Wasim. Good afternoon and Assalamu alaikum everyone. बस इतनी सी बात करनी थी. Sat Shri Akal, Namaskar, जी. Bonjour. और दो चार. बाकी अन्नी आंदे ने. चलो कल भी याद करके आना. ठीक है. Arigato आंदा है. And joining us in the DP World dressing room, a very special guest that we've been looking forward to having here. आपने उनका मैसेज हमने वीडियो दिखाया था आप लोगों को. Where it represented India and has done a lot of damage around the world against a lot of bowlers, especially one sitting on this table right opposite him. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Ajay Jadeja. Ajay Jadeja, welcome. Thank you. Thank you. Welcome. Thank you for having me here. Yes. It's a privilege to be around these gentlemen. I'm not sure whether I can call them gentlemen, but yes. And all of us here. आपके साथ ही अटैक ओपनिंग था. इन्होंने चांस नहीं देना. आपने कहा ना वो टो क्रशर है, ये हेड ब्रेकर है, तो कहाँ से चांस मिलना है उसको. मैं बेचारे को अपना घर का बंदा है, उसको कुछ बोल नहीं सकता. नहीं, but it's a privilege to be here. It's been a privilege watching you all over the last couple of years as well, and I think it's an honor to be sitting on this table and be sharing some moments of our lives. And इस आदमी के पास बैठ के ही आदमी बड़ा हो जाता है. You know, हमारा पिछले कोई 1-1.5 साल से मैंने इसको फोन किया था कि जड्डू तैयार रही, तूने हमारे शो पे आना, बिकॉज एक हमारी दोस्ती बड़ी है, इकट्ठे भी खेल रहे हैं, माइंडसेट भी एक जैसा है. और इसका मैं क्रेडिट ये दूंगा कि इसने पिछले 1 साल से इसने कहा वसीम भाई आपने कह दिया I'll be ready whenever you call me. और जब हमने इसको फोन किया, इसको काफी ऑफर्स आई, but he said no, I want to go there and have a sit with you guys. So thank you very much for that. Thank you for having me here. Offers कहाँ थी मुझे ये नहीं पता. Well, you know what? You're here. That's what really matters. There's a lot of history here because Ajay Jadeja, Waqar Younis have played against each other in the under-19 as well. So there's कह दो जो कहना चाह रहे हो कह दो. मुका दो. शुरू जी मुका दो. Aista. You know, slow death is the painful death. So under 19 you guys played together. Which year was that? 1988, 89. नहीं 88, 89. 89 में पाकिस्तान खेल गया था ना 87. हाँ तो वो 6 महीने बाद खेल गया. बाप रे नहीं होना. Who else was there from your side and Pakistani? I remember. Pakistan side was a great side. Heavy duty side. Basit was captain in those days. Inzi was playing. Moin was there. Rashid, Mushi. Yeah. अरे अपना बैट्समैन फज्जा. Zaid Fazal. I'm sorry. नहीं, सबसे पहले मैं apologize to everyone क्योंकि नाम किसी का अगर ठीक ना हो, क्योंकि हमारी pronunciation वैसे ही थोड़ी हल्की होती है, especially जब हम overseas players के नाम लेते हैं तो कई बार गलती होगी, लेकिन माफ कीजिएगा. Especially जब South Africans के नाम लेते हैं, because they're Dutch. और उसमें से काफी चीजें साइलेंट होती है जो हमें नहीं पता होता. हम वो पढ़ रहे होते हैं. कल दो नाम गलत दोयली में लिखी स्पेलिंग खास जिड़ी वकार भी नहीं आप पकड़ ली थी. It was important, otherwise I would have gotten it wrong on air. All right, folks. Yesterday it was another great game here at the Ring of Fire in Dubai. It was India versus Bangladesh, and here is the match summary of yesterday's game. ये आपके सामने हम करते हैं. So Bangladesh won the toss, went out to bat. They wanted to come out. I think they tried too hard when they came out and lost early wickets. But it was a good recovery by the Bangladeshi batters. However, that total was not good enough. The pitch was tricky, and of course, Shami, they're picking up those 5 wickets, and Akshar Patel almost getting that hat-trick, which unfortunately was dropped by the captain himself, Rohit Sharma, for which he's going to take him out for dinner. That's what he said yesterday in the post-match. And then, of course, India coming back to chase that total with that wonderful century by Gill, and they look really good. Ajay, you're looking at this team, and
बहुत सारी बातें हुई जी, 5 स्पिनर हैं तो यूं है तो फला है तो उसको छोड़ दिया उसको छोड़ दिया. It looks like the Indian selectors have kind of covered all their bases and kept in mind that these games are going to be played in Dubai. I think they've been practical, and I think India as a cricketing nation at the moment, we are so blessed that you have a choice to go with whether you want to. जायसवाल जैसा प्लेयर अभी जस्ट यंग लड़के ने आपने 100 किया 37 गेंदों में T20 में, उसकी बारी नहीं आती. उनकी जगह नहीं मानी, so that's a good problem to have. उसकी बारी नहीं आ रही. If I could add, Rishabh Pant, who I'm a big fan of, Right. the guy doesn't make it to the side. Bumrah still not available. So imagine the blessing that we have. शामी ने कोई कसर छोड़ी नहीं कि कोई हमें बुमराह को मिस करते. उसने उधर जाके जिस किस्म की बॉलिंग कर दी कल, it was just incredible. So it's a choice that they've made, and I think because जो तीनों स्पिनर हैं उसमें से 2 बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, तो वो बीच में खिला पाते हैं कि जहाँ टर्न होगी वहाँ खिला लेंगे. बट यहाँ पे तो बॉल एक्चुअली यहाँ पे तो मेरे को सीमर का भी गेंद चलता है. गेंद चलता है, शुरू में बॉल चलता है 5-6 ओवर, उसके बाद काफी फ्लैट हो जाता है. हार्ड वर्क. उसके बाद वैसे बांग्लादेश टीम ने अपनी हेल्प खुद नहीं की. वो आए हैं, पहले 5 विकेटें उन्होंने ऐसे खेले हैं जैसे कि बड़ी जल्दी है इन्होंने. Actually, that was basically them trying to stop Nikhil and Waqar to go to the golf course. Yeah, That was what Bangladesh's plan was. They were focused not only at the game at hand that was being played inside the Ring of Fire, but the game that was to be played at a golf course close to the Ring of Fire that they were also concerned about. So their plan worked well. Their plan worked. At least on this end, it worked very well. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 10 ਮਿੰਟ ਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ 5 ਮਿੰਟ basically, because we had to make a U-turn from there. And then you came back and it was 160 runs. और इन्होंने बोला भी है उनको कि फिर अब पार्टनरशिप लग जाएगी. ये वकार मैंने बोला था. नहीं, वो दोनों बड़ा अच्छा खेले. मैं तो थोड़ी देर ही देखा है. आई थिंक फ्रीली खेले. यंग आदमी का यही तो एडवांटेज है. प्रेशर नहीं लेते, कहते 5 आउट है तो हमें क्या मौका तो मिल गया. Exactly, यही हम बात कर रहे थे पिछले 1-2 दिनों से about Fresh blood. कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में फेयरलेस क्रिकेट जरूरी है और फ्रेश टैलेंट का आना बड़ा जरूरी है. मैं ये नहीं कह रहा कि 11 के 11 बदल दो, बट 2 से 4 आपके फ्रेश लड़के होने चाहिए. आजकल की क्रिकेट में डेटा इतना हो गया है इन्वॉल्व, तो अगर आपको ने किसी को देखा हुआ है कहाँ खेलता है, कहाँ शॉटे मारता है, और उसको हर विकेट पे आपने अंदाजा लगा लिया, तो अगर उसी को आपने उसके अगेंस्ट स्ट्रेटजी बनानी है तो इजियर है ना. इसीलिए आप देखें छोटी टीमें, छोटी इज अ रॉन्ग वर्ड टू यूज फॉर एनीवन, बट inexperience of people who have not been seen by other teams, they don't have enough video footage of theirs, they actually are tend to doing well. The new guys come in, you take a couple of games to figure out where somebody is bowling. So I think that is an advantage in these days, as he's saying. I think information and fitness, ये 2 चीजें जो ना मैसिवली इंप्रूव हुई हमारे टाइम से. हमारे टाइम में शायद उतनी फिटनेस का इतना रवाज ही नहीं था. ये होता था कि ठीक है रनिंग कर लो, भागो, ये वो. आई थिंक मॉडर्न डेज में अब वो जो लुक ही है ना, लुक भी चेंज हुई है. दे बिकम फिटर, बल्ले अच्छे हो गए हैं, बड़े बड़े छक्के लगने शुरू हो गए हैं. एंड देन ऑफ कोर्स ऑल दिस डाटा एंड इंफॉर्मेशन हैज मेड अ बिग डेटा पे आप लोग सब लोग बड़ा करते हैं. डेटा क्यों वसीम? चूंकि सेलुलर कंपनीज ने इतना सस्ता डेटा देना शुरू कर दिया कि हर कोई डेटा पे ही चला रहा होता है सब कुछ. इज दैट व्हाट्स गोइंग ऑन? Data is there, I suppose. It's sometimes it's too complicated. As well depends किस culture से आप आए हो. हमारे culture में attention span, हमारा culture is not subcontinent. Attention span is like a चिड़ा. चिड़ा is a male sparrow. I can't. उसकी मेमोरी कम होती है. ना वो उसका मतलब मेरा कुछ और है. वो मैं ऑफ द आपको बताऊंगा बाद में. So हमारे लड़कों को आप डेटा दोगे तो वो आई थिंक दे बी लॉस्ट. जब भी मैं इवन PSL में भी था तो मैंने कहा मीटिंग रखो 14 मिनट की. अगर 15 मिनट में गए तो पहले 14 भी भूल जाएंगे लड़के. सो आपको पता होना चाहिए अपने लड़कों को. और मुझे एक और बात पता लगी, विकी 3-3 घंटे की मीटिंग करता था. ये कोच था. खैरियत है? इसलिए तो मैं इतने बैठा हूँ. Good one. That's a good one. Lekin, your take on data. देखिए डेटा आप उस तरीके से you can just use it to maybe guide you. You can't be 100% कि आप किसी बैट्समैन के खिलाफ बॉलिंग करने जा रहे हैं कि जी फ्रंट फुट पे बहुत ज्यादा खेलता है, वो अगले दिन की विकेट कैसे खेल रही है उस पे बहुत कुछ फर्क पड़ता है. सिचुएशन पे बहुत फर्क पड़ता है. आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं, बाद में बॉलिंग कर रहे हैं, स्कोर डिफेंड कर रहे हैं. सो लॉट ऑफ चेंजेस. पर हाँ, आप एज अ बॉलर खुद देखते हैं कि कोई, एज अ स्पिनर मैं बता सकता हूँ कि कोई बैट्समैन स्टेप आउट करता है, किसी को छक्का मारने के लिए बाहर दूर वाली बॉल पसंद है, किसी को पास वाली पसंद है. सो यू गेज दोस थिंग्स योरसेल्फ एज वेल.
That makes a big difference to me. All right, it's about how. G. आई थिंक डेटा के साथ एक जो वर्ड आया है, आई मीन इफ यू हैव टाइम, Yes. अच्छा यहाँ तो खुली Time ही time ही time है हमारे पास। आई थिंक आप एक नया वर्ड भी सुनते हैं ना, जो है एग्जीक्यूशन। उसकी वजह क्या है, और मैं इसके बड़े खिलाफ हूँ इसलिए क्योंकि हमारे अंडर 15 में भी इंडिया में आजकल 4-4 कोचेस जाते हैं। जब अंडर 19 की अभी बात हुई, जब हम वहाँ गए थे तो पहली बार गए थे पाकिस्तान विकेट देखते हैं, जो हमारा कप्तान था या जो कोच साहब एक होते थे साथ, वो डिसीजन लेते थे। फिर आपकी गलती हो गई है तो अगली बार आप बेटर होते थे। अब अंडर 15 से लेके जो बंदा इंडिया का भी कप्तान बन रहा है, उसने कभी डिसीजन ही नहीं लिया है, उसको बताया जाता है। तो अगर वो वहां से लेके अपनी कंट्री की टीम तक खेलने लगा है तो उसको आदत है कि कोई उसको बताए उसने आज क्या करना है, क्योंकि उसने अपना दिमाग तो चलाया ही नहीं है। और पुराने जमाने में इसीलिए एक्सपीरियंस प्लेयर हम देखते भी थे टीमों में। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर ही बोलते थे, इफ यू रिमेंबर, क्योंकि वो डेटा था, Yeah. उनके पास वो डेटा था। अब ये हो गया है क्रिकेट में कि बचपन से लेके 3-3, 4-4 कोचेस, फील्डिंग कोच, बैटिंग कोच। तो वो जो 16 साल का लड़का है जिसने खेलना शुरू किया है, उसको तो बताया कि आज ये करना है, वो अच्छा करके आगे गया है, फिर वो वहां से सिलेक्ट हुआ है, वो वहां से आगे गया है। तो जो लड़का सुनने वाला है कोचेस की और जो एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि प्लान तो कोच कर रहा है, Right. खुद नहीं कर तो रहा। इसलिए ये जो डेटा का जो इस्तेमाल है वो इतना आगे बढ़ गया। और हम लोग जो इंडिया पाकिस्तान वाले हैं, हम शायद डिसिप्लिन इतने नहीं है जितने बाकी होते हैं, इसलिए हम डेटा में लड़ते रहते हैं। यार ये डेटा सही नहीं है। True. All right, it is the second group, the Group B matches that are now coming up. The first game today. Let's take a look at the Group B, how it is poised, because this is this is also a very loaded group. You've got South Africa, Australia, England, and the dark horse Afghanistan, and then it's Afghanistan clashing with South Africa. Afghanistan के बारे में याद रहे कि just recently in the 2023 World Cup they defeated Sri Lanka, Pakistan, and England. So by no means are they a lesser team in any way. And then, you know, here's another thing. The mentor is sitting right here for Afghanistan. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? जड्डू ने भी मेरी तरह ना सारे काम कर दिए। इसीलिए तो यहाँ बैठे। नहीं, इसमें तो बिल्कुल स्वैप हुआ है। वैसे अगर आप देखें, जो आपका शो है वो यहाँ पे जो बैठते थे इस सीट पे, उनको आपने टीम के साथ भेज दिया है। तो उनकी जगह मैं यहाँ आ गया हूँ। नहीं, आई थिंक आई वाज ब्लेस्ड, यू नो। ये जो टीम है, ये एक बड़ी अलग तरह की टीम है। किस लिहाज से? आई थिंक बहुत लिहाज है, लेकिन एक मेंटली तो है ही है बहुत टफ। वो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप मुझे और कोई टीम बताएं दुनिया की जिसने क्रिकेट खेलना शुरू किया और वो लेवल 5 पे हो 10 साल पहले, और वो वहां से कभी रुकी ही नहीं है। तो इन लोगों की जो जापान, सिंगापुर, बट्सवाना से खेल रहे थे ये, वो वहां से शुरू हुए, फिर वो वहां से लेवल 3 पे आए, लेवल 3 से फिर लेवल 2 पे आए, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में आए। तो इनकी जर्नी कभी रुकी ही नहीं है। और इनके साथ एक और चीज मैं देख रहा हूँ अभी, ये क्योंकि अभी 1 साल से बाहर से देख रहा हूँ, ये इतना इमोशनल नहीं हुए प्लेयर्स के बारे में। हैं इनके 2-3 प्लेयर वो ही पुराने चल रहे हैं, जैसे नबी एक अकेला है जो वहां से चलता आ रहा है। आप 23 वर्ल्ड कप में भी देखेंगे और अब देखेंगे तो उसमें भी 2-3 और नए आ गए हैं। तो ये आगे बढ़ते चले गए हैं, और ये इनकी खासियत ही है कि ये इमोशनल नहीं होते एक प्लेयर के पीछे। ये एक यूनिट है, एक टीम है। और इनमें मैंने कहीं और भी बात बोली थी, मेरे को आप लोगों का जो टाइम था 90s का, वो एक याद आता है। क्योंकि ये जब 4 बैठते हैं ना शाम को, तो एक दूसरे की खिंचाई कर सकते हैं, चाहे जितना मर्जी सीनियर प्लेयर हो। तो ग्राउंड पे अगर कुछ हुआ है तो बोल देते हैं, पायन वैसे थोड़े को झुकिया नहीं जाता वो। मतलब ये बात आपने सीन पे हाथ रख के क्यों बोली है वैसे? नहीं, मैं विकी को बोल नहीं सकता, वो मेरी उम्र से कही है ना। एक्चुअली अब तो मेरे से यंगर हो गया है, मैंने सुना है। हाँ, वैसे विकी का पता नहीं है। नहीं, मेरे से छोटा हो गया। अच्छा, मैं देख रहा था पेपर पे। ये एक्चुअली ये हमारे यहाँ बड़ा ये है, हम लोग की एज रिवर्स में चलती है। अब देखिए ना, पिछले 5 साल से वसीम 60 पे फंसे हुए हैं। ये अब आप ये मत बोलिएगा कि वो रिवर्स एज का, कल वो आपने सबको गिफ्ट हैम्पर दिए ना, वो क्यों हो रहा है? यार वो कन्वर्सेशन ना शुरू कीजिएगा। नहीं, वो कन्वर्सेशन नहीं शुरू हो सकती। आपने you have just touched a very very sensitive subject. इसके ऊपर पोस्ट मैच में बात कर सकते हैं। रात को करेंगे, रात की बात है ये कौन सी है? बताएंगे। आपको गिफ्ट हैम्पर अभी आप आए 15 मिनट हुए आपको शो में, ठीक है ना? अभी आप देखें आगे आगे होता है क्या। हो गए 15 मिनट, बताइए। सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। जी हाँ, कल मैं मिस भी कर गया हूँ। Yes. So Afghanistan, you're right. They keep progressing. They keep going on and on and on and on. We'll talk more about their team and how their journey has been. And you know, it was really incredible to see how they performed during the 2023 World Cup, because And they are in prime form. They are in prime form. They are ready to go. Ready to go. South Africa, Wasim, now
you know, they अभी जो उन्होंने ट्राई सीरीज खेली है उन्होंने वो they were not at their full strength, but now they are at their full strength. I mean, उनकी recent form is not that great. 6 के 6 मैच हारे हैं जो ओडीआई खेल रहे हैं, अभी पाकिस्तान में भी हारे हैं, बट उसमें उन्होंने 7 चेंजेस किए हैं. जो मेन उनके प्लेयर थे जो बिजी थे ऐसे T20 में, वो आके ज्वाइन किया उन्होंने इन 7 प्लेयरों को. बट जो आज के मैच में मुझे लग रहा है कि ये अफगानिस्तान किसी 1-2 बड़ी टीमों को लेके जाएगी और जाना भी चाहिए. उनके प्लेयर जैसे जड्डू भी एक्सप्लेन करेगा हमें सारा. उनके प्लेयर मैंने आयल T20 में फारूकी को देखा, क्या ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा था, नए गेंद से हाईएस्ट विकेट टेकर था. उसके बाद नैब 3 पे बैटिंग करने आया. मैं स्कोर भी, विकेटें भी, कैचेस भी. You know, these guys are playing leagues all over the world as well, apart from playing for their country. So yeah, it's a very dangerous side and a consistent side now. Right. It's one off नहीं है कि ये upset कर देंगे आगे. जी. It is not like that at all. Welcome back to the DP World Dressing Room. I'm Fakhri Alam. You're watching 10 Sports, our continued coverage of the ICC Champions Trophy. With me in the dressing room, I've got Nikhil Chopra, Waqar Yunus, Wasim Akram, and Ajay Jadeja. And this break was very, very colourful. Jaddu Paji is there, so the break was very colourful. अच्छा, by the way, लोग बड़ी दफा कहते हैं कि जी ये फखर जो है ये हर दफा इंट्रोडक्शन क्यों कराता है इतना लंबा, जरा एक्सप्लेन कर दे. So a lot of people are joining in a little late in the show, and you want to kind of do that. And secondly, we don't have much to say sometimes, so I'm trying. I'm just kidding. भाई लेकिन सच बता दो ना, it's gone viral thanks to you. Yeah. So more and more people are joining every day, so they must know. Yes, they must know who's in the studio, just in case somebody's changed, somebody has not, you know, finished his golf game, and you know. और अगर ये भी ज़हन में रखना है कि लोगों ने कपड़े पाए होने तो उन्होंने वीडियो बनानी है. नहीं, ये वीडियो मैंने सबको बता दिया. जड्डू को भी बताना हो कि अनगार्डेड मिसाइल है. हाँ. सोशल मीडिया के साथ जिथे फोन आया तुमने बिल्कुल सीधा हो जाना है. ये छाप भी देता है. अच्छा, मजे की बात यह है कि मैं फोन लेके आता हूँ, मेरे फोन के बारे में वसीम सबको वार्न करते हैं, लेकिन जब मैं कल फोन लेके फिर रहा था तो वकार, और कल मैंने आपको ड्रेसिंग रूम का असल माहौल दिखाया. द रील हैज गॉन वायरल वर्ल्ड वाइड. इट्स प्रॉब्ली ओवर 1 million views since yesterday. So well done, Wasim. Wasim actually found a pair of clothing in our wardrobe, which we are still trying to figure out कि ये किसकी wardrobe है जो हमारे wardrobe में लगी हुई है. वापस जाके आपको दिखाएंगे, इसके ऊपर आपने तबसरा करना है. But let's get down to the business. ओदी भी वीडियो बनेगी. ओदी भी वीडियो बनेगी. ओदी भी बनेगी. नहीं मतलब कपड़े पाए सी तुसी के नहीं? वो आपने देखा नहीं, आप लाइट पूरा कर रहे दिखाया. तुसी दिखाता सारे दुनिया में. अद्धे पौने कपड़े पाए. दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था. इसकी बॉडी दिखाने वाली नहीं है अभी. Ooh, ouch. All right, folks, let's get down to the cricket business. Team Afghanistan की squad आपके सामने लेकर आते हैं. Ajay Jadeja, you were their mentor. You've been with the team. Take us through this team. Tell us who we should be looking out for, and who do you think is going to make an impact today? I think the good thing about this team is that it's not dependent on just one individual. They work as a team pretty well. The most important for that side is their opening partnership. They both played under 19 together. They grew up together. They understand each other, and they had this belief that all the other seniors who come behind them कि उनकी बारी ना आने दें. तो ये जब सक्सेसफुल होते हैं और दोनों की स्टाइल बिल्कुल अलग है. फिर रहमत शाह आई थिंक इज अ वेरी की लंबी 50 ओवर की गेम में स्टाइलिश प्लेयर हैं, बहुत अटैकिंग नहीं है, बॉलर्स नहीं डरेंगे, लेकिन जो इम्पैक्ट इनका है उस टीम का बहुत इंपॉर्टेंट है. कप्तान साहब अगर लगे रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये दोनों को मौका मिल जाता है कि इस्टेब्लिश करें, टाइम ले लें. इनकी स्ट्राइक रेट दोनों की कम है, लेकिन इस टीम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जो आते हैं ना सब स्ट्राइकर्स हैं. नबी हो, राशिद तक जाके सब स्ट्राइकर ऐसे हैं कि आखिरी 10 ओवर 8 ओवर में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं. आई थिंक जड्डू गुलबदीन नायब जो है ना अभी वो नया है, वो इसमें वापसी में. हाँ, अभी उसने ही इज बीन इन अ ग्रेट फॉर्म. वो हाँ, तो उनकी इंक्लूजन है. मैंने तो 2023 से लेके आ रहा था यार. तो ये गुलबदीन उस टाइम टीम में नहीं था. इनफैक्ट ही हैड गॉन टू एशिया कप एंड कैप्टन दैट टीम एंड वन. तो उस टीम में ये नहीं थे, उसके बावजूद वो टीम वहां थी. तो उनकी एडिशन से ये फर्क पड़ गया है, क्योंकि इसकी स्ट्राइक रेट जो है वो भी उन बाकियों से बेहतर है. लेकिन ये एक मर्क्यूरियल प्लेयर है, और जो 2020 वाला काम है ना उसमें ये, और लोग कहते हैं बॉलिंग, मैं कहता हूँ इसकी बैटिंग नहीं, नंबर 5-6 पे आइडियल प्लेयर. नहीं, इवन आप जैसे हमने देखा ये आयल T20 में 3 पे बैटिंग, पहले उसको नीचे खिलाया, कुछ नहीं हुआ, फिर उसको 3 पे किया, तो आई थिंक ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी शायद हो गया था. ऑलमोस्ट क्लोज था. T20 क्रिकेट में आई फील के यू कैन शिफ्ट हिम अप एंड डाउन. 50 ओवर में आई एम नॉट श्योर कि 50 ओवर ये इस तरह की खेला जा सकता है. सो आई थिंक 5-6 पे आइडियल प्लेयर है कि अगर आपको 10-12 की एवरेज चाहिए, ही इज द मैन. Nikhil, does it
okay, how does a batsman rethink and bring himself into that frame of mind कि अभी ILT20 से आप निकल के अचानक आपको 50 ओवर्स में बाना पड़ रहा है, right? It's a totally different beast that you're tackling. विदाउट अ डाउट। एंड अच्छी चीज़ क्या है, गुलबदीन नायब जो इतने साल से खेलता आ रहा है, दैट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस, 3 नंबर 4 नंबर पे जब T20 में उनको एक वो अवसर मिला था, आई थिंक शॉर्ट सिलेक्शन एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आज मेरा दिन है 25-30 रन बना लिए तो मैंने यहाँ से मैच जिताना है। आई थिंक दैट बिलीफ इन अ बैट्समैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स T20 विज़ावी 50 ओवर की क्रिकेट में यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। अगर वो 5-6 नंबर पे आते हैं, कितने ओवर बचे हुए हैं, सो ही इज गॉट दैट सॉर्ट ऑफ गेम कि जब चाहे वो गियर बदल भी सकते हैं। ही इज नॉट समबडी दैट कि अच्छी बॉल पे भी जबरदस्ती मारने जाएंगे। ही इज समबडी हु विल वेट इट आउट एंड ही विल बैक हिमसेल्फ एंड ही इज इन टेरिफिक फॉर्म एज वेल। सो I don't think that transition would be too different for him because he's been in that sort of form as well. So he'll go into a game with a lot of confidence. I think ये ना जैसे ये जड्डू है अफगानिस्तान की क्रिकेट का, यूटिलिटी क्रिकेटर। आप जहाँ पे जिस नंबर पे मर्जी खिला रहे, मेरा जड्डू तो सारे नंबरों पे खेला हुआ है वैसे। नहीं, अच्छा मेरी बात का हाँ, नहीं आजकल तो भाई दूसरा जाडेजा खेल रहा है। नहीं तेरी बात। अरे नहीं, आजकल एयरपोर्ट पे क्या हुआ, मैं आपको ये ट्रू स्टोरी है, ये सुनाऊं, क्योंकि ये तो एयरपोर्ट पे आया कोई, किसी ने, एक आदमी ने कहा हम फोटो लेनी है मेरी फैमिली को, तो लेडी मेरे बगल में खड़ी, उनका बच्चा भी वहाँ खड़ा हो गया, तो वो फोटो ले रहे हैं, वो मम्मी की ना सलवार खींच रहा है, मम्मी जडेजा कहाँ है, जडेजा कहाँ है। उसे बेचारे को क्या पता है ये जडेजा है, वो कह रहा है दाढ़ी वाला जडेजा कहाँ है। नहीं, कई दफा आते हैं जो तो वही मैं खुद सरप्राइज हो गया जब फैन आते हैं कई दफा। वो अदर डे आया, डैड थे उनके साथ, 3 साल की बड़ी खूब प्यारी सी लिटिल प्रिंसेस थी, ये आपसे तस्वीर खिंचवाएगी। मैं क्या एनू की पता मैं कौन है, मैं कहा आप आए मेरे साथ तस्वीर खिंचवाए। जब बड़ी होगी तो दिखाऊंगा। मैं कहा तब तक हम नहीं रहेंगे No, भाई। I know that. It happens. वैसे आपके लिए ये बात सही नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जितना आप है ना, 3 साल की बच्ची को भी पता है आपको। That is true. You've got all the ages. But the funniest one that happens is जब वो लेकर आते हैं ना बिल्कुल किसी इन्फेंट को ना, 3 महीने की बच्ची को, ये आपकी बहुत बड़ी फैन है। Okay. I don't think so. But I think okay. sometimes people the do parents get, don't want to admit कि मैं तस्वीर खिंचवाना चाहता हूँ, बच्चों में डाल देते हैं। थोड़े ओवर एक्साइटेड होकर अंडर प्रेशर भी आ जाते हैं। अगर मैं किसी अपने हीरो को मिलूंगा, फॉर इंस्टेंस अगर किसी को, आजकल तो अभी तो हम खुद बूढ़े हो गए हैं, बट जवानी में अगर सनी भाई, इमरान भाई, कपिल देव, विव रिचर्ड्स के सामने हम भी लिटरली अजीब से शेकी से हो जाते थे। Yeah. All right, let's take a look at Azmatullah Omarzai now. He's been a real impact player for Afghanistan, and when he gets going, Jadeja, this is a totally different thing. Yes. And I think that turnaround of that team has got to do with a lot of it. Because इसकी बैटिंग जो थी, इसने बैटिंग जो बड़ी टीमों के अगेंस्ट इसने रन बनाए, स्टेबिलिटी दी। So proper बैट्स टेक्निक वाइज ये इसकी अलग टेक्निक है एक्चुअली। अगर इसका हाथ देखोगे तो दूर से खेलता है, मतलब बल्ला इसका खुल के हाथ चलता है, लेकिन इसकी अपनी गेम इसने सेट की हुई है। इसको टाइम मिल जाए ना सेटल होने का, फिर ये बहुत काम का है, तो जो कि टीम के लिए भी बहुत है। So this match summary, Ajay, if you look, this is Afghanistan versus South Africa. This was the World Cup in 2023, and Omarzai got that 97. Yeah, 97. He really, he's fearless, and as you said, very important component for this team. Because he wasn't a mainstay in that team. उस साल इस वर्ल्ड कप में जब शुरुआत की तो पहले कुछ मैचेस में ये आगे भी नहीं खेलता था, इसको गिनते भी नहीं थे। टीम में होता है ना, एक टीम में भी होता है, एक माहौल बना हुआ होता है। So he made his mark in that team, और उसके बाद he's a cricketer of the year this year ICC का। He's grown as a player. He scored a couple of hundreds. एक 100 बनाया था इसने नबी के साथ, जो मैच नहीं जीते श्रीलंका में, लेकिन वो 380 या कुछ चेज कर रहे थे। तो वहां से ये एज अ टीम जैसे ग्रो हो रही है, ये भी एक प्लेयर है, ग्रो होता गया। और मेरा तो इसका मानना है कि मैं कहा ये 1-2 साल में वर्ल्ड का बेस्ट ऑलराउंडर होना चाहिए भाई तुझे। तू सोचेगा ही वैसे नहीं तो कहाँ पहुंचो। और इनकी फॉर्म जो एज अ टीम, जैसे जड्डू बता रहा है, अब इसकी जो पिछली 4 अब सीरीज देखें, वनडे की सीरीज, ये चारों जीते हैं। 2-0 जिम्बाब्वे से, 2-1 बांग्लादेश से, 2-1 साउथ अफ्रीका से, 2-0 आयरलैंड से। सो their confidence is growing as a team। और जड्डू बता रहा है कि इनके पास प्लेयर, इनका सिस्टम फेयरलेस है, टैलेंट तो है ही है, एंड फेयरलेसनेस इज आल्सो द की। नहीं, ऑफ कोर्स दे आर फेयरलेस। आई मीन ये जहाँ से आते हैं वहाँ पे तो फेयर ही क्या है। मतलब वहाँ से जो बड़ा हुआ है, जो सवेरे घर निकलता है, उसे पता नहीं घर आएगा नहीं वापस, उस एज में ये बड़े हुए हैं। आई थिंक फेयरलेसनेस तो है ही इनमें। अगर कोई फेयर थी तो फेयर ऑफ विनिंग थी,
विनिंग के पास आते थे ना तब नजर आता था कि अरे थोड़ी सी स्ट्रेस हो रही है क्या, यहाँ से भी हम अब वो भी खत्म हो रहा अब वो निकल गया, वो निकल एक गया। झांका होता है, निकल बंदे का गया, झांका निकल गया, अब ये हाथ आने वाले में से नहीं During रहे। your tenure with Afghanistan, what was the most memorable win for you? Oh, no, don't go there. No, I can put it in another way. Yeah. ये चैंपियंस ट्रॉफी है, these guys have qualified, the other team is playing because of it's a host team. Yeah. Yeah. No, but what would you do? The Pakistan victory in I think, I mean, That was a big victory. I mean, there are two memories. One is a very sad memory of the day against Australia, what happened on that जो कर day. गया But greatest learning as well. Yeah. But the first game, I mean, jokes apart, you know, Pakistan एक अलग चीज है. Pakistan and Afghanistan have their own little relationship and, you know, Yeah. the battle that they have. But I think the England win for me was very important. क्योंकि वो टूर्नामेंट के शुरुआत में थी. इंग्लैंड को अगर आप देखें तो उस वर्ल्ड कप में आप भी शो कर रहे थे, फेवरेट्स होके शुरू हुए थे. जी. तो और जो इंग्लैंड का हशर हुआ एंड में वो शुरुआत करी थी अफगानिस्तान ने. तो वो मैच जो दिल्ली में था वहां से टर्न अराउंड भी हुआ, वहां से बिलीफ आई जीतने की. और एक होता है ना, नहीं तो आप जाते हैं किसी टूर्नामेंट में, आप फील करते हैं वहां अच्छा करना है, लेकिन क्या हम कर पाएंगे, नहीं होगा, क्या होगा. वो टर्न अराउंड जब इंग्लैंड के विरुद्ध हुआ, वो मुझे लगता है कि मेरे लिए वो मेमोरेबल थी. लेकिन जो लड़के थे उनके लिए पाकिस्तान की विन जो थी ना, वो ज्यादा वो जो अरे उस by the way, जिस दिन पाकिस्तान वाली विन हुई थी उस दिन आप हमको बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे. नहीं, मैंने उसमें क्या करना है. ये तो बहुत देर बैठा हुआ था आराम मुझे से। पता है अंदर के शॉट्स आ रहे थे ना, तो ये यार ये इन्होंने बताया जाके इनको सब कुछ. मेरे बताने से होता तो मैं खुद ना कर लेता. मुझे तो ये 96 से बुरा लग रहा है. नहीं, 96 तो फिर 96. 96 का अपना ही एक मैजिक जो है वो है. और इंग्लैंड वाली विन में जॉनथन ट्रॉट बड़े खुश हुए थे अपनी ही टीम को डिफीट करके. नहीं, बिल्कुल जोनाथन ट्रॉट, यू नो, इस टीम का वो स्तंभ है. वो बाकी लोग तो आए हैं गए हैं हमारी तरह, वो 3-4 साल से इस टीम को आगे लेके चले हैं, उनके साथ वहां रुके रहे हैं. सो कोचिंग में कंसिस्टेंसी कितनी जरूरत है एज अ कोच? अब कोच को कम से कम साल 2 तो चाहिए, am I right? इन अ वे नहीं, देखिए, कोच को तो मैं तो हमेशा ये मानता हूँ, सबसे पहले कोच ही सैक होता है ना. नहीं वो तो साढ़े वर्गे मतलब इंडिया पाकिस्तान से ये ज्यादा होता है, बाहर कट होता है. मेरी असेसमेंट हमेशा कोच की ये रही है, जब कोच टीम छोड़ के जाए उसके अगले 6 महीने में क्या होता है, वो असली कोच की पहचान है मेरे लिए. अचीवमेंट होता है. क्योंकि अगर जैसे मैं ब्लेस्ड हूँ कि उस टाइम गया, टीम अच्छा कर गई, सबको लगा ओ जी ये हो गया वो हो गया, आपने ये कर दिया. जैसे हम प्लेयरों के साथ भी करते हैं, जो अच्छा खेलता है वो कहता है वो बहुत तगड़ा प्लेयर है, फेल हो जाए तो खत्म हो गया. बट कोच तो एक टीचर ही है ना. तो अगर वो जाने के बाद अगर आपको वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ के गया, फिर तो वो मैनेजर है, कोच नहीं है. मेरा मानना ये है, कोच का आप सही इम्पैक्ट अगर किसी का देखना चाहते That is a unique perspective. What impact did you leave behind? Because it's a good. But it is very difficult these days for coaches, and I'm blessed that we are here with these greats. कि इन greats को कोच होते तो I'm sure फर्क पड़ता. ये आगे नहीं जाते, ये पीछे ही जाते दोनों. क्योंकि कोच आपको सिखाता है, आपको जो ग्रो करना है वो तो आपको खुद ही करना पड़ता है. That you have to do. ये वसीम बार-बार कहते हैं कि there's only so much a coach can do. The rest of the player has to सर, do. इस गेम में तो कोचिंग सिर्फ स्कूल तक हुआ करती थी. कोच का काम ही स्कूल का कोच होता था, उसके बाद कभी कोच होता नहीं था हमारी जिंदगी में. Absolutely. Now let me quickly ask you this, Waqar, that so Yunus Khan is there as well. Yeah. And Yunus has a very, he's got his own kind of temperament and all that and everything. How do you think they pair up together, Jonathan Trott and Yunus Khan? I think जोनाथन ट्रॉट ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਹੋਏਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ. यूनुस का भी नहीं ਬਾਕੀ ਯੂਨਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੋਨਾਥਨ ਟਰॉट ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ. But they were honest But they answer. both are As per hard, Wasim. they both are hardworking. Jonathan Trott, you said, and Yunus is a Disciplined. very hard, disciplined guy. जिससे सवाल पूछा उन्होंने जवाब नहीं दे देना तुसी. नहीं तो आज ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ. जवाब आ गया. नहीं, टाइम तुसी दे दे रहे हैं जवाब. मुझे ताकि सोच ठीक ही सुनना चाह रहे हो तुसी. मैं कुछ नहीं, आपसे honest तो आई थिंक दोनों के साथ मैंने एक के साथ खेला भी हूँ, कोच भी किया है, और दूसरे के साथ भी मैं खेला हूँ जोनाथन ट्रॉट को. दोनों डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, बट टोटली डिफरेंट, ऑपोजिट टू ईच अदर. बट देन अगेन खूबसूरती गेम की यही है कि यू गेट टुगेदर एंड यू नो पुट योर issues away and try to make things better. And Yunus Khan is a hard-working guy, as Jonathan Trott is also a hard-working guy. So I think they will both work well. वो इसलिए कि
यूनुस भी थोड़ा अकेला रहना का शौक है उसको भी Okay. और जोनाथन ट्रॉट तो बिल्कुल ही अकेला रहने का शौकीन है Right. सो आई थिंक अपना अपना काम करेंगे एंड ऑफ कोर्स स्ट्रेटजीज जब ये बनाएंगे आई थिंक they'll do well. All right, that should be. You know, coaching up, I want to ask अजय भाई, जिस तरीके से स्तंभ है अगर जॉनथन ट्रॉट, so obviously he's got the approval of कुछ सीनियर प्लेयर, क्योंकि राशिद खान जिस तरीके से अफगानिस्तान टीम को लेके चले हैं, मोहम्मद नबी टीम के साथ है, so he obviously has the respect of some of the senior players as well. देखो, I mean, I don't know much about their association, but I think most coaches, Vicky would tell you better, are not there because the players want you. You are there because the board wants you. Yeah. Players, I mean, even when we played, there were, you and I played, there were, you know, moments that we didn't get along with certain coaches because when you're playing, you feel that, oh, you know everything. Yeah. It's only when you grow up, you realize a senior person would have always guided you better. और जिसके साथ आप लड़े होते हो, उससे आप शायद सबसे ज़्यादा सीखते हो. So, he definitely has respect of players. और because what Vicky said, I think that's the key. कि वो ना बिल्कुल अलग रहते हैं. वो जैसे हमारे यहाँ मानते हैं कि घुल मिल के रहना चाहिए, कोच का काम है कि साथ में ना के, और कोचिंग, मेरा तो मानना है कि कोचिंग में अब इस लेवल पे आप किसी की टेक्निक चेंज नहीं करते. Yeah, exactly. इस लेवल पे आप माहौल बना सकते हैं एक टीम का, और माहौल अगर आप लोगों के साथ बैठ के नहीं बना रहे तो मैं मानता हूँ कि वो तो सही नहीं है, क्योंकि आपको उनके साथ ही चलना पड़ेगा. कोच वो अच्छा होगा आज के जमाने में जो प्लेयरों को समझे. अगर प्लेयरों से लड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरे टाइम पे मैं देखता हूँ और अपने टाइम पे कि भाई हमें कौन से कोच के साथ बेटर लगता था, क्योंकि जो आपके साथ चले, आपसे लड़ता रहेगा तो फिर वो बात आगे चलेगी नहीं. और वैसे जॉनथन माहौल- ट्रॉट लड़ेगा नहीं किसी से, वो अपना काम करेगा, वो डिसिप्लिन्ड है, वो डेडिकेटेड है, हर डेटा पॉइंट लेके, हर चीज लेके कागजी काम पूरा करेगा. जब टीम मीटिंग खत्म होगी उसके बाद वो अपनी किताब बंद करेगा, इसलिए उसको प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी, कहीं पे भी जाए. आप माहौल बनाने की बात कर रहे थे. वसीम इज वेरी गुड माहौल बनाने में. माहौल बना लो. I wish I can say that on television, तो बाद में बताऊँ. Joke है एक माहौल. Joke है माहौल बनाने में. I can't say it. I know, of मैं course, but I know Trot that. के I was बारे just में reminding you that you बोल गया. appreciate that with him. दिखाते हैं कि नहीं? दिखाते हैं. All right, dressing room shots in the DP World dressing room. This is coming live from the Karachi National Stadium, Karachi, and this is how actually a dressing room looks like. Well, actually, no. This one is Wasim is looking very staged to me because इतना सामान ये इतना स्टेज है, organized ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइज किसने किया होता वही मैं कह रहे हैं, this बहुत है. But और टीवी हमारे वालों ने वाला ऐसे रख रुक के आगे होंगे, तो फिर आप भी ऑर्गेनाइज, आपने भी वक्त ऐसे- बदल गया है वसीम भाई, Exactly. वक्त बदल गया है, वक्त बदल गया. Really? But anyway, this dressing room is pretty unorganized as well. Not really. We look at us, yeah. Yeah. Ready, steady, looking ये good. थल्ले थल्ले की है. ये चिकन है क्या? All right, it's Afghanistan versus South Africa, and dressing room to dressing room. Back in our DP World dressing room, we're talking about the game now. Let's take a look at the South African team, the South African squad. Let's bring that up on your screens right now. This is how the South African squad is. Nikhil, take us through the squad. अभी हाल में अभी कप्तान साहब बहुमा साहब, आई मीन they've got plenty of headaches. अभी हाल ही में जो ट्रायंगुलर सीरीज थी, 304 रन करके हारे, 352 करके हारे, उसमें से एक खिलाड़ी है जिसने 150 और 80 बनाया, वो उस टीम में नजर नहीं आ रहे ब्रिट्स के. But they've got Marco Jansen back. I think the main guys would be Klaasen as well as Van der Dusen. You've got guys like Kagiso Rabada who are coming back. These guys would be the key guys and to win games. David Miller as well. क्योंकि आप जब 304 और 352 रन करके दोनों मैचेस उसी जगह हारते हैं ना, it takes a big toll to bounce back from that. And you're going against a quality bowling lineup जो आपको पहले हरा चुकी है. So plenty of headache for the man on screen, Kaptan Saab. He'd want his key guys, Klaasen, Miller, and some of these guys जो इनके main match winners हैं, to go out there and do the job and win you games as well. Yeah, key players, Miller, Klaasen. Let's talk about Miller, the killer, Wasim. Yeah. We've seen him over the years, especially from PSL, then the T20 World Cup, so forth and so on. He's just, look at that, look at that record. He's just a good player. White ball cricketer है, T20 ले लें, आप one day cricket ले लें. He's supremely fit. He's a very good fielder. And look at his strike rate. Look at his 24 इसके 50 हैं, 600 हैं. And experienced as well, or 175 games. So yeah, he's the key. And South Africa have
मोस्ट डेंजरस मिडिल ऑर्डर इन द वर्ल्ड। आप बात करें माकरम है, क्लासन वन ऑफ माय फेवरेट्स। क्लासन जिस तरीके से बैटिंग करता है, फिर मिलर है, फिर यानसन है, ये 4 मिडिल ऑर्डर में है। सो मिलर एंड क्लासन जो हैं ये दोनों मेन बंदे हैं, और उसका रैकेट देख लो। Look at Klasen's record. Yeah. Look at that strike rate, by the way. वनडे में ये स्ट्राइक रेट बड़ा कम देखा जाता है। नहीं, स्ट्राइक रेट देखो, और उसके साथ 400 भी हैं जी, सिर्फ, और ओपन नहीं करता ये बंदा, बीच में खेलता है, 4 पे आगे 100 भी बनाए हुए हैं। तो इतना नहीं है कि सिर्फ 30, 40, 50 करता है। जब ये पीछे पड़ता है तो फिर पूरा पड़ता है। इनकी बैटिंग में कहीं कमी नहीं है। इनकी बैटिंग में ओपनर ही दिख रहे हैं ऐसे जो नए, लेकिन बहुमा ने अब कॉन्फिडेंस आया है। अभी उन्होंने एक नॉक जिसने पहले मैच में 150 किया है अभी ट्राई सीरीज में, उसको ड्रॉप किया है। ब्रिट्स को ड्रॉप 150 और उसने भाई 3 नंबर पे आके फिर अगले मैच में 83 भी बनाया। वो नहीं है, ही इज नॉट पार्ट दैट। तभी कह रहे हैं ये पाकिस्तान इंडिया में होता तो यूट्यूबर्स ने सत्यानाश मार दिया। 150 तभी कह रहे हैं क्लासन वुड बी देयर की, बिकॉज़ आप 30 ओवर बीच में स्पिन की खेलोगे। Right. On these sort of tracks you need somebody जो गेम चलाए, क्योंकि राशिद है, नूर डालेगा, नबी फिर ऑफ स्पिनर, ये दोनों तरफ से वो प्रेशर हैंडल करने के लिए। that's why I'm saying Klassen probably in that middle order would be key, but of course Miller. So spinner इनका नूर और राशिद और नबी होगा अगेंस्ट देयर मिडिल ऑर्डर। और कराची में जो हमने पिछला मैच देखा पाकिस्तान का पहला, ऑल्दो पहली बैटिंग करके वो 300 प्लस कर गए थे, बट सेकंड इनिंग में बॉल हो रहा था, ग्रिप कर रहा था, ड्राइनेस जो थी पिच में। सो पिच रिपोर्ट में पता लगेगा पिच कैसी है, बट यू डोंट हैव टू बी रॉकेट साइंटिस्ट एंड टू बी देयर, यू नो कि द बॉल विल टर्न। But Wasim, don't you think with the kind of spin attack that Afghanistan has at its disposal, even if the pitch is not really turning, Still, they you're are right. still they're a handful to They're play. potent, they're very experienced, they're wicket takers. They're wicket takers. नबी का चलो इतनी वेरिएशन नहीं है, बट एक्सपीरियंस है। नूर मिस्ट्री बॉलर, राशिद वी ऑल नो कि क्या फॉर्म है पिछले, अभी नहीं पिछले जब से 4-5 साल, और अभी 24 साल का है, 25 साल का है। क्या ही इज अफरीदी का नहीं, शाहीन की नहीं मैं बात कर रहा I know. पुराने वाले की का। सुसर की बात सुसर की बात अच्छा, सुसर शाहीन इज मैरिड टू शाहिद's daughter. इतनी बड़ी डॉटर कैसे है उसकी? He got married. He got married when he was 13. यार बेकार, नहीं What a player, वो भी क्या प्लेयर है। बूम बूम। यार एक बारी वो याद है इफ्तिमेनिया पे हम लोग फंसे थे, आपको याद Yeah, है? possibly याद है। That was 4.5 मिनट तक हंसते रहते हम लोग। नहीं, coming back to Shahid Afridi, impact player जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल, लोग स्टेडियम जो भरता था, he was one of them. yes, of course. You know, star power. incredible. I mean, हम तो हमारे साथ शुरू में खेला, उसके बाद पूरी पाकिस्तान क्रिकेट को लेके जाने वाला, जहाँ गया लोग स्टेडियम भर जाते थे शाहिद अफरीदी को देखने। कई लोग होते हैं किस्मत वाले जो पीपल फॉल इन लव विद यू नो, अगर उसकी जो गेम है उस टाइम में लोगों को पसंद आती थी, सामने वाले बॉलरों को नहीं पसंद आती थी, वो अलग बात भी डिफरेंट ना। हाँ, वो इसीलिए वो एक उसमें एक अलग चार्म था, और अभी भी यंग लगता है। अभी लास्ट फोटो भी कहीं मैंने देखी, सो दैट्स व्हाई आई एम सरप्राइज्ड ही हैज अ डॉटर दिस ओल्ड, बिकॉज़ आई थॉट कि ही इज अ मच यंगर लैड। He is. इसी पे रहे, he's a younger lad. Let's just focus on the positives of this whole thing, right? Nikhil, let me ask you this. South Africa, finalists in the last ICC World Cup, you know, the T20 wala. वो कमाल मैच आ कमाल रहे थे मैच। वो every final or every critical game, South Africa somehow, you know, वो जो chokers वाला जो उनके साथ वो टैग लगा हुआ है, how do you get rid of that? आई थिंक जो अजय भैया ने एक चीज अभी बोली थी ना, वो अफगानिस्तान टीम के साथ जो चल रही थी, दैट फियर ऑफ मे बी विनिंग, यू नो, व्हेन यू गेट सो क्लोज, यू आर अबाउट टू गेट इट डन एंड यू कांट जस्ट यू नो गेट ओवर द लाइन, तो वो घबराहट से आपको निकालना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये जो अब जो ये प्लेयर हैं, क्लासन, मिलर, आई थिंक दे स्पेंड इनफ टाइम, वैसे वो मैचेस वो खेल चुके, दे नो नाउ व्हाट नॉट टू डू प्रोबेबली। सो इफ दे गेट देमसेल्व्स इनटू दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, अब वो शायद गलतियां वो दोहराएंगे नहीं। बहरहाल इस टीम के खिलाफ 30 ओवर स्पिन के खिलाफ मेरे हिसाब से विकेट टेकिंग की बात हो रही है, मुश्किल होगा। हम लोग पहले दिन अजय भैया थे नहीं, जब 4 सेमीफाइनल्स पिक कर रहे थे, मैं जेन्युइनली नॉट फॉर एनी सिंपैथेटिक रीजन, मैंने भी अफगानिस्तान को पिक किया। अफगानिस्तान को इसलिए पिक किया है, वो जुझारूपन आप जो स्पोर्ट में देखना चाहते हैं ना, वो नेवर से डाई एटीट्यूड की हमने जाके मुकाबला जीतना है, देखी जाएगी, दे नॉट अफ्रेड नाउ ऑफ विनिंग, जो साउथ अफ्रीका में वो शायद वो नहीं नजर कि कहीं हार ना जाए। भाई मेरे को लगता है वो अभी भी ना दबे खेलते हैं कि यार वी आर गोइंग टू दिस फेवरेट्स, हम गलती ना कर दें। आप जब कोई स्पोर्ट या कोई काम करते हो उस घबराहट के साथ करते हो, गलती ना हो ना, तो वो
अमूमन होती ही होती है गलती. So I think South Africa is still in that phase. But when you look at their individual players like Klaasen and Yeah, Miller, yeah. वो जिस तरह खेल रहे होते हैं, अब आप उस T20 के फाइनली की ले लें इंडिया के खिलाफ जो था वर्ल्ड कप का अभी, वो एक टाइम पे तो यूं लग रहा था कि ये तो अनस्टॉपेबल है, हाँ, ये एट विल बाउंड्रियां मार रहे थे. मैच जीत जाएंगे. हाँ, That's what we they thought. were वो, and then of course Pandya produced that सूर्या ने catch पकड़ा फिर, that yeah. catch that was, it was just remarkable that we've seen. But ये इस mindset से वकार कैसे निकला जाए? मतलब आप मुसलसल जो हैं, आप जब कोई अच्छा काम करने लगे और आप अपनी बीवी से पिटें जिस तरह आप पिटते हैं, तो उस बंदा उस माइंड फ्रेम से कैसे निकल सकता है? मुश्किल काम है ये जो दूसरा वाला आपने कहा ना कि पिटने वाला, और उस फ्रेम ऑफ माइंड से निकलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस फ्रेम ऑफ माइंड से आई थिंक निकलना इतना मुश्किल नहीं है. आई मीन अब ये 3-4 ओकेजन्स हो गए हैं ऐसे कि जहाँ पे ये लोग फाइनलिस्ट थे या सेमीफाइनलिस्ट थे. अभी नीदरलैंड से हारे, अभी पिछले वर्ल्ड कप में नीदरलैंड से हार गया. आई मीन वन कांट इवन इमेजिन दैट. तो ये इनके साथ होता है, जब भी नॉकआउट स्टेज आएगी ये इनके हाथ पैर फूलते हैं. तो आई फील प्लेयर्स भी बिकी 90s में देख लो, आप देख लो, प्लेयर्स भी चेंज हो रहे हैं, ऑब्वियसली हो रहे हैं, बट स्टिल दैट माइंडसेट इज इट्स जस्ट प्लेइंग ऑन देयर, बिकॉज़ आई थिंक हम जब बैठते हैं, हम उनको कह के ये नहीं जीतेंगे कि नहीं, तो ये दुनिया में बातें और ये लफ्ज जाते हैं, तो जब ये सुनते हैं तो आई थिंक इनके माइंड में प्ले कर रहा है. आई थिंक वंस दे क्रॉस वन लाइन, I think things will settle down. Yeah. But so far it's not happened, and निखिल ने कहा ना कि अगर पिच खराब हुई तो इतना आसान नहीं होगा साउथ अफ्रीका. चाहे जितने बड़ा ठाकुर तो गए हो, जितने बड़े नंबर्स हों, जितनी बड़े आपने परफॉर्मेंस की हो अगेंस्ट अफगानिस्तान, I don't think it's going to be easy. Well, there you have Team Afghanistan. Jonathan Trott having a word with his boys, and the boys looking good, getting ready at the National Stadium Karachi for their showdown with South Africa. Oh, that's a long tongue there. I wonder what's that all about. You're watching the DP World Dressing Room. I'm sorry, but that image was there. आपकी नजर से कोई चीज नहीं जाती. हाँ, मेरी नहीं, वसीम की नजर से कोई चीज नहीं किसी नजर है. हाय अल्लाह, तुम्हारी खैर हो जाए. Well, there you have Gurbaz here. Ajay, tell us more about this guy. I think he's exciting. I mean, एक तो ये की है वो अपनी जगह, लेकिन as a person, हाँ, I think he's an odd one from the rest of the team. You know, all the other guys are of a similar mold in terms of, you know, personalities. ये एक थोड़ा अलग सा है. हर जनरेशन में अगली जनरेशन वाला जो आता है ना, एक पुरानी चीज को तोड़ना को बिलीव करता है. तो ये उनमें से था. जब टीम मीटिंग भी होती थी या कुछ बात होगी ना, तो इसने एक, you know, वो सीलिंग तोड़ने की बात करनी है. ये डिसिप्लिन में रहना नहीं चाहता. बाकी सब डिसिप्लिन लड़के हैं. ये भी डिसिप्लिन है, ऐसा नहीं है, मतलब हमारे कंपैरिजन में तो बहुत डिसिप्लिन है, लेकिन बाकी जो टीम है उनसे ये थोड़ा सा अलग है. आप खेलते हुए भी इसको देखते हैं, रिस्क सबसे ज्यादा लेता है, एक खुले अंदाज से खेलता है. तो ये एक वो आदमी है जो पंट लेता रहता है खेलते हुए भी, कि यार रुकता नहीं है किसी स्टेज पे. तो ये आम काम नहीं करेगा, ये करेगा कोई एक्सेप्शनल काम. नहीं तो पहले ओवर में आपको दिखेगा कि इसने लिफ्ट मारी और चला गया. ऐसे ही है. Does he respect his curfew time back to the hotel? आई थिंक ये कर्फ्यू टाइम्स के इस टीम को कर्फ्यू की जरूरत ही नहीं है. ये अकेला ऐसा है कि ये तो रात को भी निकल जाए. मैंने कहा ना, ये ऑड है. बाकी पूरी टीम को आपको कर्फ्यू टाइम देने की जरूरत नहीं है. 5 टाइम मगर की नमाज से लेके पूरी टीम साथ में नमाज पढ़ती है. क्या बात है. और इनकी डिसिप्लिन की कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये मैं गारंटी दे सकता हूँ. मैं इनके साथ 1 महीना रहा हूँ. मैं सुबह मगर की नमाज में भी साथ होता था और रात तक इनके साथ रहता था. फजर की नमाज से वो करते हो. Sorry, but sorry. I just want to say, वसीम, वो कह रहे हैं कि इनकी गारंटी मैं दे सकता हूँ. इनकी गारंटी आप देंगे? जाडेजा ने कहा ना कि टीम अफगानिस्तान की गारंटी मैं दे सकता हूँ. जाडेजा की गारंटी नहीं, मैं वो खुद इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं रात भर तो जागता हूँ ना. मैं चेक कर रहा हूँ सबको, कौन आ रहा है कौन जा रहा है. ये गारंटियां देने आएगा, ये हमारी भी गारंटी यही देगा. Welcome back to the DP World Dressing Room. Live images coming out of National Stadium Karachi. That's the Afghanistan team huddle, just like our huddle in the dressing room, which we posted yesterday, shared with you. But now that Ajay Jadeja is here with us in the dressing room, we have to do another huddle, which we shall share with you in this evening.
And there must be a really very good discussion going on there. Communication is key, as Wasim always says, in the dressing room. I've got these four fantastic gentlemen. But before we get going on that discussion on the huddle, जी। आज की हो रही होगी गल वैसे आपस में बात है? ये हडल तो प्रैक्टिस की हडल है ना. एक तो हडल होती है व्हेन यू गो इनटू द फील्ड तो क्विक रिमाइंडर Practice का मतलब क्या है? ये हडल की प्रैक्टिस कर रहे हैं? नहीं प्रैक्टिसिंग के बाद प्रैक्टिस खत्म हो गई, अब टॉस का होने वाला टाइम है. हाँ. तो एक छोटी हडल करके रिमाइंड कराएगा मीटिंग में क्या किया है, क्या क्या करना है, किसकी क्या क्या जॉब है, जस्ट अ क्विक रिमाइंडर. Right. आई थिंक राशिद को देखा, आई थिंक कप्तान कोई भी हो, कोई भी कोच हो, कोई भी, आई थिंक इस टीम का जो लीडर है ना, एक एवरीबॉडी लुक्स अप टू हिम. सो व्हेन ही टॉक्स always say. नहीं कि माहौल एक इंस्पायरिंग हो जाता है. कई लड़के तो नए भी आते हैं टीम में, वो उसको ऐसे देखते हैं जैसे हमारे टाइम में शायद वसीम भाई को देख के आप देख के ही आप एक्साइट हो जाते हो या आप इंस्पायर हो जाते हो. तो वो राशिद खान करता है इस टीम के लिए, और वही उस हडल में हो रहा था. आई थिंक वो कुछ ना कुछ बोल रहा होगा आज क्या है क्या. Pusur हो रही थी. Wasim, your thoughts on that pitch, because there are cracks, there's grass, there is Yeah, it everything. looks a very different pitch than कराची की जो पिच हमने देखी है over the years. बैटिंग इस पे अच्छी होती है, चेज भी अच्छा होता है. पाकिस्तान ने यहाँ पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ वीक एंड हाफ 10 days ago 350 चेज किया बड़ी आसानी से, 2 विकेटें गिरा के. सो ये विकेट मुझे डिफरेंट लग रही है. क्रैक्स हमें यहाँ से बैठे नजर आ रहे हैं. वो डेल स्टेन ने एक्सप्लेन भी किया, क्रैक खुले हैं. आपने जैसे बताया कि यहाँ से लग रहा है कि तीसरे दिन की पर्थ की विकेट लग रही है. ऑस्ट्रेलियन की तरह की पिच लग रही है ये. क्योंकि अपने यहाँ इंडिया पाकिस्तान में जब क्रैक होते हैं तो इतने छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं. Yeah. ये पूरे क्रैक लंबे से नजर आ रहे हैं, हार्ड लग रही है. और अनलाइक एन इंडियन और पाकिस्तानी पिच लुक्स ऑड. आई मीन यहाँ टीवी पे इतनी दूर से देखना पता नहीं एग्जैक्टली कैसी है, Fast बट ये bowlers बात को- पक्की है कि जो हमने पहले मैच में देखा था उससे बिल्कुल अलग है. Yeah, it's a totally different pitch. Waqar, your thoughts on that pitch? And Yeah, very similar. overcast conditions as well. बादल windy. है. It seems little windy. So अगर तो ये cracks जो जिस तरह डेल स्टेन ने बताया कि it's like on that 6 to 8 meters line. So बैटर्स के लिए मुश्किल ज़रूर होगी मेरा ख्याल है. नया बॉल मुश्किल होगा. मुझे लग रहा है कि हाँ ये ड्राई लग रही है, थोड़ा क्रैक्स खुले ज़रूर लग रहे हैं. मुझे जो कलर से दिखा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मॉइस्चर भी इसमें लग रहा है क्योंकि ग्रीन भी है. सो इट्स बिट फॉर एवरीवन आई गेस. Yep, and we just showed you the screenshot of the stadium. Overcast conditions, Nikhil. See, वो पिच देखने से पहले आई थॉट कि अफगानिस्तान की ताकत देखे अगर वो टॉस जीते बैटिंग करते, जो उनकी बॉलिंग है पिछले मैच में देखा कोई ड्यू नहीं है, लेकिन ओवरकास्ट और अगर हल्की सी भी ड्यू है देन द पैरामीटर्स ऑफ योर डिसीजन देन चेंज. देन व्हिचएवर कैप्टन विंस द टॉस आप पहले जाके बॉलिंग करें. जो आधा घंटा 40 मिनट की जो भी फ्रेशनेस है you'd want to utilize that sort of freshness as well. So There's, Wasim, really no express pace available to Afghanistan. And they do have, I mean, Farooqi bowls very well with the new ball, but there's no express pace. And Coming does that back to the pitch, sorry to Yeah, cut your question. Average first inning score is Jadoo 310 on this square, not in this particular pitch. But generally. So, but this doesn't look like 310, 320 pitch to me. Maybe we are wrong. We're sitting miles away from the pitch, but grass, cracks, and नया ball ने तो definitely होगा. हवा जब कराची से चलती है. Yeah, मुझे these are लगता live है- images मुझे- coming मुझे in now. लगता Look है- at that. Look at the cracks at Waqar visible even from out from here. far, yeah. मुझे ऐसा लगता है कि ओवरनाइट चीज़ें बदली हैं यहाँ पर क्योंकि पिछले मैच में क्योंकि स्पिन ज़्यादा हो रहा था तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ग्राउंड स्टाफ को कहा गया है कि यार ये भी तो ICC के पास है ना अब हाँ तो. तो आईसीसी भी कह सकता है ना ग्राउंड Yeah. स्टाफ को. ऐसा नहीं है कि आईसीसी नहीं कह सकता. तो ये इसीलिए मुझे लग रहा है ये ग्रीन जो छोड़ा है, हालांकि घास काटा है. पिछले अगर एक आप जोनाथन ट्रॉट जो पिच पे घूम रहा था 2 दिन पहले वो तो पूरी ग्रासी पिच थी तो इन्होंने घास ज़रूर काटा है. लेकिन मैंने ऑफ कोर्स इतने बड़े बड़े क्रैक्स कराची में पहले और कभी लास्ट देखे जो नहीं. 5 मैच कराची में हुए उनके स्कोर हैं 320, 242, 352, 299 और 334. Yeah. बड़े रन बनते हैं भाई. It generally, traditionally, is considered to be a place where you get a lot of runs. But this pitch has जहाँ- left everybody surprised. जहाँ पे really. बनने चाहिए थे पिछले मैच में बने नहीं साढ़े को. हाँ जी, साढ़े को नहीं बनते ना, बाकी से सबसे बनते हैं. तुसी पीछे ही जाएगी यार. आगे चलो यार. आगे चले, पीछे को छोड़े, बाकी की तरफ नहीं, जाएं. और ये क्रैक भी मतलब एक लेटरल हो ना तो वो मिस करने के चांस होते हैं. ये तो सिर्फ लंबाई में क्रैक है. हाँ, ये क्रैक्स तो कहीं ना कहीं किसी भी लेंथ पे गिर. आते हैं कि क्या बिकॉज ड्राई हो तो क्रैक आएंगे ना. रोल किए जाओ, ड्राई भी हो,
फिर पानी दो, so it's quite complicated. वो बड़ा impossible है पाकिस्तानी अपनी सब कॉर्नर पिचेस पे इस तरह क्रैक देखना। सामने कभी नजर नहीं आया जब उसी के आज आ गए, you know, it's right there. With that, we're going to take another break right here in the dressing room. Keep watching 10 Sports. We'll be back after these messages. Welcome back to the DP World Dressing Room. Live images coming out of the National Stadium Karachi, where Afghanistan and South Africa are gearing up for their clash today at the Champions Trophy. And, you know, it's just fantastic to see these guys playing in Karachi. Pakistan has been waiting for international cricket, big international cricket to come to Pakistan and the big ICC tournament to happen in Pakistan. And this is Pakistan's moment to shine. The newly refurbished National Stadium, we've got some really interesting things that have been happening there. And the Afghanistan team looking very determined there. With me in the DP World Dressing Room, I've got Nikhil Chopra, Waqar Yunus, the great Wasim Akram, and our special guest joining today, Ajay Jadeja. We were talking about the game that now we've been... अभी हम ये पिच के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ी और इसके ऊपर गुफ्तगू हुई है हमारी in the break. And you guys said that the cracks can only happen if it's a really hard deck, if it's a really hard surface. Yeah, soft wicket में cracks नहीं आ सकते. Cracks नहीं आ सकते. Yeah, इस तरह लंबे वाले. लंबे वाले. So ये जड्डू बता रहा था कि हमारे उनमें ना स्क्वायर वाले क्रैक होते हैं. छोटे. तो ये पूरे लंबे हैं जो कि बिल्कुल अगर बॉल लग के इधर भी जाएगा बैट ऑस्ट्रेलियन टाइप है. जब ऑस्ट्रेलिया में पिचेस हार्ड होती है ना, तो वहाँ की धूप भी जरा तगड़ी होती है. तो जब वो धूप लगती है तो क्रैक खुलता है, तो फिर उस तरह खुलता है बड़ा. वो छोटे ब्लॉक्स नहीं बनते, ये ब्लॉक बड़े बड़े ब्लॉक बनते हैं. बीच में गिरेगा तो आई डोंट थिंक विल मच ऑफ एन इशू, लेकिन उस क्रैक में अगर गेंद गिरा, आई थिंक वो ट्रबल जरूर. Yeah, it's a very odd looking pitch though for Karachi. Yeah, it is. But आप कह रहे हैं कि क्रैक पे नहीं लगेगा गेंद तो ठीक आएगा, लेकिन क्रैक में लगा तो it'll do something. But there are a lot of cracks here. I mean, it's very hardly unlikely that you will miss a crack basically. अगर ये दोनों कह रहे हैं कराची की विकेट ऐसी कभी नहीं देखी, हमें तो जाने भी नहीं देते आप वहाँ. तो हम कहाँ से बताएं कैसी होगी? यार आपको मिसने का हम आपको जाने नहीं देते. हम तो आपको बुला के थक गए कि आप लोग आए पाकिस्तान में आके खेलें, उन पिचों को देखें, उधर शो करें, उधर सब कुछ करें. मेरे को तो जिस दिन बुलाते हो मैं पहुंच जाता हूँ. नहीं तो ये है अलग पिच, अपने यहाँ ऐसी होती नहीं है, बहुत कम देखने को मिलती है ऐसी. तो मुझे तो लगता है हार्ड होगी. मैं बिल्कुल विकी के साथ हूँ कि अगर हार्ड ना हो तो ये लाइनें हो ही नहीं सकती. So if it's a hard pitch, if it is what we think it is, then Nikhil, who has the advantage here right now? See, the South African pace bowlers, of course, because that sort of express pace, Kagiso Rabada, the extra bit of bounce, वो बड़ा फर्क पड़ेगा. बट मुझे फिर और इंटरेस्टिंग लगता है कि अगर हार्ड विकेट होती है ना तो एक रिस्ट स्पिनर को भी फायदा देके जाएगी. राशिद खान का बॉल जिस पेस से ऑफ द विकेट आएगा, अगर उनको आप हाथ से नहीं रीड करेंगे और वो स्टंप्स को अटैक करेंगे तो उनके वो 10 ओवर साथ में नूर उधर से वो प्रेशर डालेगा. सो वो 20 ओवर बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा. बट अब ये भी आएगा निखिल साउथ अफ्रीका पे, बिकॉज ऐसी विकेट पे अफगानिस्तान के खिलाफ 30 ओवर तो स्पिन करेंगे मिडिल में, ऑलमोस्ट 10 ना करे 5-6 तो करेगा ही. तो चेज करना मुश्किल हो जाएगा. अब यहाँ अगर वो पहले बॉलिंग करेंगे यहाँ पे, बिकॉज विकेट पे थोड़ी नमी है, एक अनइवन बाउंस है, तो सेकंड इनिंग में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा चेज करना भी. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर साउथ अफ्रीका. आई थिंक, आई मीन साउथ अफ्रीका या साउथ अफ्रीका. I think South Africa probably would be more at home because this kind of wicket कि उनको bounce की आदत होती है, cracks जो हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका में भी जोबर्ग में ऐसे देखने को मिलती है. But there you have it, South Africa winning the toss and have elected to bat first. Good decision, Ajay. I think good decision because एक तो विकेट का पता नहीं है, वहाँ पे भी हम सुन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की बातें हो रही हैं. और मैं मानता हूँ कि शाम को जो ये ग्राउंड्स होते हैं जो समुंदर के पास वाले हैं, मुंबई हो, कराची हो, फास्ट बॉलर्स डू इट बेटर. बट शुरू में ना गेंद हवा में भी हिलता है शाम को. दोपहर को अब आप 1:30 बजे 2 बजे गर्मी में ओवरकास्ट जरूर है, बट वो कितनी देर रहेगा नहीं पता होता. शाम को पक्का है कि वो जो शाम को ठंडी हवा कराची में हवा चलती है तो वो गेंद हिलता है. तो बैटिंग फर्स्ट फॉर मी इज ऑलवेज की. Playing 11s are here. Let's take a look. Nikhil, take us through this playing 11. Rickleton, Dizorzi, Captain Dovuma, Dizorzi. Hopefully he has a good game because in the last couple of games he has open करेगा. ओपन करेगा. तो और ओपनर मैंने दूसरा ना है 3 नंबर. ये पहले ये जो पाकिस्तान में सीरीज हो रही थी वो नहीं खेल रहे थे. So he's one of the 7 guys who was missing. He's back. Aiden Markram, David Miller, Mulder, Jansen, Maharaj, Rabada, Ingiri. There's one name missing. Klaasen, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि 30 ओवर स्पिन वो बीच में गेम वो चलाएंगे. So that's a big name that is that's missing. interesting. But pace is looking, and Keshav Maharaj
टीम में एंड आई थिंक बबूमन बात कर रहे थे कि शायद ही गॉट तबरेज शमशी प्लेइंग बट ही गॉट Yeah. केशव महाराज इन दैट All right, Ajay Jadeja, take us through the Afghanistan team. The usual suspects, the openers, the most important one, Siddiq is the new man who's shown a lot of talent, but here comes your solidity. Rahmat Shah, Hazmat, ये दोनों solid. फिर अजमत और गुलबदीन दो exciting cricketers हैं, दोनों तरह से खेल सकते हैं. So they had, और फिर तो एक्सपीरियंस आता है नबी का और राशिद खान जो कि बल्लेबाजी भी करते हैं और नूर को भी मिस मत कीजिएगा, बल्लेबाजी ये भी अच्छी करते हैं. और एक सिर्फ फारूकी एक नजर आ रहे हैं फास्ट बॉलर. So I think they will go with Omar Zai and Nabi to फारूकी और नबी डालेंगे. गुलबदीन नाइब और ओमर जाई. Yeah, but that still leaves a very big question Klaasen, mark मैं on तो उसी South team में. Africa. Everybody is stuck on that. What has happened there is very एक तो interesting. पहले समझ नहीं आई कप्तान की टॉस पे करना क्या है, उधर नू चला गया है, वो इधर है. फिर टीम बताई है उसकी समझ नहीं आई. हमने तबरेज का नाम सुना है, प्लेइंग 11 में महाराज है. हाँ. सुवाई तबरेज का नाम क्यों लिया गया? क्लासन मुझे नजर नहीं आया प्लेइंग. I know. There's something strange going on there, but we'll try to get at the bottom of this. But right now, it's time for another break here on the DP World Dressing Room. We'll see you on the other side. नहीं आया. Welcome back to the DP World Dressing Room. Live images coming out of the National Stadium, Karachi. Everybody very, very worried about Klaasen, why he's not in that playing 11. And we've just found the news that he's got a soft elbow injury, and it's just a precaution why he's going to sit this one out. So interesting how this South African team now goes about their business. And it's time for predictions now, Ajay, because you're just joining us today. So आप वो पुजारों को भेज रहे थे मैसेजेस कि किस टीम को सिलेक्ट करना है, तो आपके पॉइंट्स बड़े अच्छे हैं क्योंकि पॉइंट्स टेबल मैं कल से लगाना शुरू कर दूंगा यहाँ पे. So you see this DP World truck that we have, इसके पीछे जो ये ट्रक का जो कंटेनर है, we've got a special prize for the winner here. Now Wasim's guess was it's going to be some chocolate and some biscuits and some, this and a cup and a cap. That's not what it is. It is actually a proper prize that when we open, it's a surprise. When we open on the last day of the final, it's going to be something really worth fighting for. So इसलिए आपकी जो predictions हैं have to be very, very right because we're giving you points for it. दो पुजारा आपके लिए जीत के गया हुआ है points by the way already. So you're already, yes. All right. So starting with you, Nikhil, today's winner for you. With Klaasen not playing, मैं तो पहले दिन से I'm backing Afghanistan. So Afghanistan? जी. Okay. For you, Waqar? South Africa. South Africa. For you, Wasim? अगर अफगानिस्तान दूसरी बॉलिंग करता तो मैं डेफिनेटली उनको पिक करता. बट नाउ दे आर बॉलिंग फर्स्ट, सो आई विल पिक साउथ अफ्रीका. South Africa. And for you? देखो बुजुर्ग साउथ अफ्रीका के साथ चलें, दिल तो मेरा अफगानिस्तान के साथ ही रहेगा, बट जो हालात देखे ना आज, गॉट टू गो विद साउथ अफ्रीका. Huh? साउथ अफ्रीका. South Africa as well. Okay. Actually ये दिल से इन्होंने ना पहले मैच में इन दोनों ने दिल से किया था. दोनों का एक पॉइंट 0 है. हमारी मजबूरी थी. नहीं, बट इसीलिए मैं दिल से गया हूँ, वहीं तक गया हूँ, बट लेकिन फिर दिमाग लगाए. अगर बुजुर्ग दो बात कर रहे हैं तो जरूर. नहीं, हम जिस मैच में हमने किया था ना, उसमें अगर दिमाग ना कर देना तो तबाही थी. जो पाकिस्तान खेला. एक बंदा है जो बाकी सब के अगेंस्ट दिया था बस कि न्यूजीलैंड. Yes. Yeah, true. Yeah. बाकी सब जा रहे थे. आज भी तू अकेला रह गया. नहीं, फिर ये जीतेगा. Yeah, this is पकड़ लेंगे फिर कब ग्रीन रूम में. we will. So again, remember, we are keeping score of all your right predictions, and the highest scorer at the end of this ICC Champions Trophy, we will unlock that container. अगर मुझे बिस्कुट, खजूरें, ऑलिव्स, परफ्यूम पैड़ा जाए, सलाजीत. that I'm okay with. Guys, this is the DP World Dressing Room. The boys are getting naughty, so maybe it's time to take you back to the National Stadium where momentarily the action will begin. So guys, thank you. Thank you, Nikhil. Thank you, Waqar. Thank you, Wasim. And thank you, Ajay. I'll see you on the other side of the game. Have fun. See you after the game.